Next MCQs are related to class object exception in Python especially. There are some important points. The, there are a number of fields where we use Python as an efficient tool. Here we will discuss the following: artificial intelligence and machine learning are requirements of the times as they yield the most promising career for learners. The field of AI and ML relates to the incorporation of intelligence into machines by the process of self-learning from the data stored in the system. Various algorithms are available for this purpose, but to bring AI and ML into action, Python is the first choice because various well-equipped libraries like Pandas, Scikit-learn, NumPy, etc. are available to facilitate the engineers and scientists learn the algorithm, use the library, and we have our solution to the problem. Second field, data science and data visualization. Data scientist is just another promising career. If you know how to extract relevant information from the data source, then the world is yours. But it is not easy. Various algorithms and techniques are required to work with. To simplify our work, again Python emerged to help us to study the data we have, perform operations, and extract the required information. Libraries such as Pandas and NumPy help us extract information. And further, Matplotlib and Seaborn are data visualization libraries that are quite helpful in plotting and visualizing data. This is how Python helps us to become a data scientist. There are some technical words in this topics that we will use generally. First is framework, which is a collection of libraries. This is the architecture of program. Second term is library. A library is a collection of packages. We may understand that the Python library or framework is a pre-written program that is ready to use on common coding tasks. Third term is package. A package is a collection of modules. It must contain the init.py file as a flag so that the Python interpreter processes it as such. The init.py could be an empty file without causing issues. A package, in essence, is like a directory holding sub packages and modules. While we can create our own packages, we can also use one from the Python package index pypi to use for our projects. To import a package, we type import game. This is the syntax. Then next technical term is module. The module is a file that contains various Python functions and global variables. It is simply just .py extension file that has Python executable code. We put similar code together in one module. This helps us modularize our code and make it much easier to deal with. And not only that, a module grants us reusability. With a module, we don't need to write the same code again for a new project that we take. So these are some technical terms. Now we move to the our topics, that is classes and instances. These two terms are generally used in any object-oriented programming. First, we know what is class. A class is a group of similar type of objects. To create the class, we use the keyword class. Syntax to create a class: this is the keyword, this is the name of class, and here I have defined the class variable and its values. Then we can also define methods in this class. So these are our variables, and we can define our methods. To define our method, we use def keyword, as we know, and this is the method name. These are the arguments. In this class, one extra argument is used, that is self. We will discuss
in details later. And this is the code of this method. Then I have defined next method, class method 2, and these are the arguments. This is the syntax. We can take one example to demonstrate it. This is the example. I have taken a keyword class, then this is the class name circle, and here I have defined radius, def radius, self, comma r, and this r is stored at self dot rate. Then I have print the radius of the circle is the format self dot rate. जो भी रेडियस होगा उस रेडियस की वैल्यू इस लोकेशन पर प्रिंट होगी आउटपुट में. द डेफ नेक्स्ट I have defined the method to calculate the area of that circle. Def area self return 2.14. This is the value of pi, and this is radius. This is also radius. Since we know the formula to find the circle, to find the area of circle is pi r square. So this is pi, this is r. So it is pi r square. Then I have defined another method, def perimeter, to calculate the perimeter of the circle, and the formula to calculate the perimeter of the circle is 2 pi r. So it is 2, and this is the value of pi, and this is the r. So 2 pi r. So there are three different methods: radius, area, and perimeter. Now I have created one object with the class circle, that is object 1, and I have passed the value of radius 3 in this object 1 dot radius. When we press enter here, it will show the value of radius by using this function. Print the radius of circle is, and at this place it will show the value of this radius. So the output is the radius of the circle is 3. Print the area of circle is, ये मेरा कमांड है, और इस जगह पर ऑब्जेक्ट 1 का जो अभी हमने रेडियस 3 लिया, उस 3 के अकॉर्डिंग इस सर्किल का एरिया 19, जो ये मेरा आउटपुट है, और यदि पेरीमीटर निकाले तो इसका पेरीमीटर होगा 12. इसी तरह से सर्किल को हमने ऑब्जेक्ट 2 पर डिफाइन किया, और इस वक्त रेडियस हमने 4 लिया है, तो इस 4 के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट रेडियस का वैल्यू, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 4. और इस पर यदि हम इस मेथड को यूज़ करें, ऑब्जेक्ट 2 पर एरिया मेथड को यूज़ करें, तो इस रेडियस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी द एरिया ऑफ द सर्किल इज 30. एंड इस ऑब्जेक्ट 2 पर यदि पेरीमीटर मेथड को कॉल करें तो हमारा इसका पेरीमीटर मिलेगा 70. अ फ्रेमवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, पैकेजेस, मॉड्यूल्स, नन्स. तो हमारा फ्रेमवर्क लाइब्रेरी का कलेक्शन होता है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए. अ लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ, लाइब्रेरी हमारा पैकेजेस के कलेक्शन होते हैं. सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी. द पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, पैकेज, मॉड्यूल्स. इट इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी. द डैश कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास. क्लास क्रिएट करने के लिए हम किस कीवर्ड को यूज़ करते हैं? ये इसमें अपर लेटर है, यहाँ पे क्लासेज लिखे हुए हैं, इसमें भी क्लासेज और अपर लेटर. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए. इन पाइथन देयर इज ए यूनिक मेथड to implement the constructor of the class in which it is defined. So its correct answer is A in 355. 356, Python provides built-in function called this and this that allow you to access global and local space, namespace, dictionaries. Namespace को शो करने के लिए हम किस कमांड को यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे ग्लोबल और लोकल की बात किया जा रहा है. तो ग्लोबल के लिए हम लोग ग्लोबल से यूज़ करते हैं, लोकल के लिए लोकल से यूज़ करते हैं. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए. अ नेम स्पेस इन पाइथन इंश्योर्स दैट ऑब्जेक्ट नेम्स आर डैश इन अ प्रोग्राम एंड कैन बी यूज्ड विदाउट एनी conflict. Identical, duplicate, unique. Its correct answer is C, unique. Point out the wrong statement. Python implements namespace spaces as dictionaries with name as key, mapped to a corresponding object as a value. It's correct.
A namespace in Python ensures that object names are unique in a program and can be used without any conflict. It is also correct. This allows for multiple namespaces to use the same name and map it to separate object. It is also correct. So its correct answer is D. Point out the wrong statement. Built-in namespace, global namespace, local namespace, all are namespace in our Python. So its correct answer is D. Point out the wrong statement. Built-in namespace, global namespace, enclosing namespace, all are namespace. So its correct answer is again D. Dash list the built-in namespace. लिस्ट द बिल्ट इन नेम स्पेस को शो करने के लिए हम किस कमांड को यूज करते हैं. इट इज यूज फॉर ग्लोबल्स. दिस इज सी इज यूज फॉर लोकल्स. सो इट्स करेक्ट आंसर इज 361A. Dash list the global namespace. Obviously, its correct answer is B. List the local namespace. Its correct answer is C. The type of global and local namespaces is किसी भी ग्लोबल और लोकल नेम स्पेस का टाइप होता है डिक्शनरी. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी. ऑल द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द इनिट वेरिएबल इज कॉल्ड इंस्टेंस क्लास स्टैटिक. A. Instance class. All the variable defined inside the class but outside the init variable is called dash variable, instance class, class variable. A class variable is also called a variable. Class variable का दूसरा नाम क्या है? It is also known as a static variable. The first argument of the init method must be. init method का first argument इसमें से self. Inheritance. In any object oriented programming we use inheritance and it is used to inherit the property of parent class. So there are a number of inheritance. First is single inheritance. Suppose there is a class 1 and there is another class C2. If we want to inherit the variable or method of class 1 in C2, then we inherit C1 into C2. Then it is called single inheritance. But if we again inherit the C2 class in C3, then there are more than one level, so it is called multi-level inheritance. But if we inherit more than one classes into a single class like this, C1 के और C2 के प्रॉपर्टीज को यदि C3 में हमने इनहेरिट कर लिया तो ये कहलाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस. और इस जगह पर ये मेरा यदि C1 और C2 इस टाइप का हो तो ये कहलाएगा सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस. और यदि हमने इसमें 3 लेवल और मोर देन 3 लेवल्स को यदि यूज़ करते तो ये मेरा कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो इस तरह से डिफरेंट इनहेरिटेंस होते हैं. और इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ सिंटैक्स और उसके बनाने का तरीका देख रहे हैं. कॉलिंग मेथड ऑफ पेरेंट क्लास बाय ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास. यदि पेरेंट क्लास का हम कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो उसके थ्रू पेरेंट क्लास के मेथड को कैसे कॉल करेंगे. यहाँ हमने एक क्लास बनाया क्लास पेरेंट. डेफ मेथड P1 का ये मेरा पहला मेथड है. इस पेरेंट का ये दूसरा मेथड है. दूसरा क्लास हमने चाइल्ड बनाया और इस पेरेंट को हमने इनहेरिट कर लिया इस चाइल्ड क्लास में. तो यहाँ पर हमने सिंगल इनहेरिटेंस को यूज़ किया है. और इस चाइल्ड के अपने मेथड्स हैं जिसमें हमने 2 मेथड डिफाइन किए. डेफ मेथड C1 और इसमें एक आउटपुट है मेथड 1 ऑफ क्लास चाइल्ड. दूसरा मेथड 2 ऑफ क्लास चाइल्ड. दिस इज द मैसेज. जब हम ऑब्जेक्ट 1 पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट 1 बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट 1 पर जब मेथड P1 को कॉल करेंगे तो मेथड P1 के जो आउटपुट है, मेथड P1 के जो आउटपुट है यानी मेथड 1 ऑफ क्लास पेरेंट, इट विल बी डिस्प्लेड ऑन आवर स्क्रीन.
ऑब्जेक्ट 1 पर जब मेथड P2 को कॉल करेंगे तो मेथड P2 की जो भी रिजल्ट होगी वो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले। यहाँ पर हमने सिंगल इनहेरिटेंस यूज़ किया और पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया। अब यदि हमें चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करना हो तो फिर हम पहले अपना पेरेंट क्लास बनाएंगे, देन चाइल्ड क्लास बनाया और चाइल्ड में पेरेंट को हमने इनहेरिट कर लिया। देन चाइल्ड के हेल्प से हम जब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट 2 बना रहे हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 पर जब मेथड P1 को कॉल करेंगे तो मेथड 1 ऑफ क्लास पेरेंट, ये चाइल्ड चूँकि हमारा इनहेरिटेड है तो इस इनहेरिटेंस की वजह से पेरेंट के भी मेथड अवेलेबल होंगे और चाइल्ड के भी मेथड अवेलेबल होंगे। तो जब हम इस पर मेथड P1 को कॉल करेंगे तो ये पेरेंट का मेथड शो किया। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट पर मेथड P2 को जब कॉल करेंगे तो उसके पेरेंट का मेथड 2 कॉल होगा। इस पर यदि हम मेथड C1 को कॉल करें तो मेथड 1 के चाइल्ड क्लास का मेथड 1 कॉल होगा और ऑब्जेक्ट 2 पर मेथड C2 को कॉल करें तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास के मेथड 2 का कॉल होगा। तो इस तरह से हम यदि चाइल्ड से कोई क्लास बनाए, कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो इस पर हम पेरेंट और उसके चाइल्ड का मेथड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे हमने दो पेरेंट क्लास बनाए, क्लास पेरेंट 1, क्लास पेरेंट 2, और इन दोनों को हमने थर्ड क्लास चाइल्ड में इनहेरिट किया और इस के हेल्प से हमने ऑब्जेक्ट 3 चाइल्ड, इस चाइल्ड का हम एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट 3 आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 दिया है। तो ऑब्जेक्ट 3 पर जब मेथड P1 को कॉल करेंगे ये मेथड P1 का आउटपुट शो करेगा। ऑब्जेक्ट 3 पर दूसरे पेरेंट का यदि हम शो करें तो दूसरे पेरेंट का मेथड आएगा। इस पर हमारे चाइल्ड 1 का भी मेथड्स डिस्प्ले होंगे जैसा यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी तरह से अब किसी भी क्लास में जब हम काम करते हैं तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग इनिट कीवर्ड को यूज़ करेंगे। जैसे क्लास C1 हमने एक बनाया डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर और इसका एक आर्गुमेंट सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट होगा। जब भी आप इस क्लास को कॉल करेंगे ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जनरली मेथड और कंस्ट्रक्टर बोथ आर प्रोसीजर बट methods are called by the users and constructors are automatically called by the constructor class। जब भी हम उस क्लास को यूज़ करेंगे तो उसके थ्रू ये हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, इसे अलग से हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस कंस्ट्रक्टर को में हम लोग अपने जो भी वैल्यू डिफाइन करने होते हैं, असाइन करने होते हैं, वो इनिशियल वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारा डेफ इनिट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का काम है। इसमें एक मैसेज हमने दिया कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास C1, दूसरा मेथड हमने बनाया जो मेथड C1 के नाम से है और इस पर हमने एक मैसेज दिया मेथड ऑफ क्लास C1। इसी तरह से हमने एक क्लास C2 भी बनाया और इस क्लास C2 का भी अपना कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने लिखा कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास C2 और दूसरे मेथड में एक मैसेज दिया मेथड ऑफ क्लास C2। अब यदि हम ऑब्जेक्ट 1 का क्लास बनाएं, क्लास 1 का हम ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट 1 C1, तो ये C1 क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से यदि C2 क्लास का हम क्लास 2 का हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसके कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होंगे जैसा ऊपर हमने आपको बताया, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। अब यदि एक से अधिक कंस्ट्रक्टर डिफरेंट क्लासेज में हो तो सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दैट इज कॉल्ड कॉलिंग सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये कॉलिंग सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर किया हुआ हमने यहाँ पे दो क्लासेज बनाए C1 एंड C2 और C1 को हमने इनहेरिट किया क्लास C2 में। तो यहाँ पर जब क्लास C1 का कंस्ट्रक्टर हमने बनाया और इस जगह पे हम C1 को इनहेरिट कर रहे हैं अपने क्लास C2 में। अब यदि हम इस क्लास C2 का ऑब्जेक्ट बनाएं तो ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। क्योंकि यहाँ पर सिंगल कंस्ट्रक्टर C1 का है इसलिए ऑटोमेटिकली ये कॉल होगा। सो कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास C1।
इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। लेकिन यदि हमारे पास एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो डिफरेंट क्लासेज में, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है क्लास C1, और इस C1 का एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने जिसमें मैसेज लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास C1। देन हमने एक मेथड डिफाइन किया इस क्लास में, और इसी C1 को हमने C2 में इनहेरिट कर लिया, और यहाँ भी एक C2 का अपना कंस्ट्रक्टर बनाया, दैट इज कॉल्ड इनिट सेल्फ। और इस सेल्फ के अंदर में हमने एक सुपर क्लास की के थ्रू इस C1 के इन कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो कॉलिंग पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग दिस सुपर की से आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को और अदर मेथड वैल्यूज को कॉल कर सकते हैं। तो सुपर की वजह से ये हमारे इस पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और ये इस का आपका चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा, जिसमें हमने एक मैसेज दिया इस चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास C2, और फिर एक मेथड हमने डिफाइन कर दिया। अब यदि हम ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास C2 का, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ऑब्वियसली C2 का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास C1, और इसके बाद ये अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास C2। तो दोनों कंस्ट्रक्टर के मैसेज यानी दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल। नाउ देयर इज वन MCQ, डैश कीवर्ड इज यूज्ड टू कॉल द यूनिट ऑफ द पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास के यूनिट को कॉल करने के लिए हम किस कीवर्ड को यूज करते हैं? ऑब्वियसली पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूनिट को कॉल करने के लिए हम यहाँ पर इस सुपर की को यूज करते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि इस जगह पे एस कैपिटल है, पेरेंट यूज नहीं होता, अपर भी यूज नहीं होता, सो इट्स करेक्ट आंसर इज C। यूजेज ऑफ द सुपर कीवर्ड इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। यदि इनहेरिटेंस मल्टीपल हो उस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होगा और कैसे उसको कॉल करेंगे? यूजेज ऑफ द सुपर कीवर्ड इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस जगह पे हम एक क्लास बना रहे हैं क्लास C1 डेफ, इसका अपना कंस्ट्रक्टर C1 है जिसका मैसेज है, और एक मेथड है C1 जिसमें मेथड हमने C1 लिखा है। एक दूसरा क्लास C2 बना रहे हैं और इसका भी अपना एक कंस्ट्रक्टर है C2 और इसके अपने मेथड हैं C2। अब यदि हम C1 और C2 को क्लास 3 में इनहेरिट कर ले तो ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा, क्योंकि मोर देन वन क्लास को हम इस जगह पे इनहेरिट कर रहे हैं, सो इट इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इस C3 का भी अपना कंस्ट्रक्टर है। अब यदि ये यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर हो गए, बोथ पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं और इस चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर है। अब इसमें क्या ऑर्डर, कौन सा सीक्वेंस पर हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी किस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा और किस ऑर्डर में कॉल होगा, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो अब यदि हम इस C3 का कोई चाइल्ड बनाए, ये ऑब्जेक्ट बना लें, इस C3 का यदि हम कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो सबसे पहले इस C3 में जो हमारा इसका सुपर क्लास दिया हुआ है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब पेरेंट क्लास हमारे पास C1 और C2 है, तो इस C1 C2 या और भी अदर क्लासेज हो, इन सारे में जो सबसे लेफ्ट मोस्ट क्लास होगा उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पहले ये कॉल करेगा और उसके बाद अपने चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अदर कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले C1 के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ये C1 का कंस्ट्रक्टर हमारा डिस्प्ले हुआ, और इसके बाद इस क्लास 3 का जो कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास C3 ये कॉल हुआ। तो इस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस और किसी भी इनहेरिटेंस में किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का क्या सीक्वेंस है, इस चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये डिफाइन होता है हमारा एक टेक्निकल टर्म है, जिस टेक्निकल टर्म को हम इस MCQ में शो कर रहे हैं। इन मल्टीपल इनहेरिटेंसेज व्हेन वी इनहेरिट द क्लासेस द मेथड ऑफ एक्सिक्यूटेड बेस्ड
ऑन द स्पेसिफाइड ऑर्डर विच इज कॉल्ड। यदि मल्टीपल इनहेरिटेंस हो और उसमें हर एक का अपना कंस्ट्रक्टर हो तो हम इनहेरिटेंस में किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए जिस टेक्निकल टर्म को हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मेथड रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ मेथड ऑफ रेजोल्यूशन ऑर्डर, MRO। ये कैसे डिफाइन हुआ, MRO क्या था, जस्ट अभी इसके पहले हमने एक्सप्लेन भी किया आपको कि इनहेरिटेंस को कॉल करने का क्या तरीका होगा। जब हम C3 क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस C3 क्लास के ऑब्जेक्ट में जो जहाँ पे हमने इसको इनहेरिट किया उसमें से वो सबसे लेफ्ट मोस्ट क्लास है उसका इनहेरिटेंस कॉल होगा पेरेंट क्लास का, और बाद में इस चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस वजह से इसकी आउटपुट होगी कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास C1, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास C3, और इसका रूल हो गया MRO, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। देन जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी क्लास में स्टैटिक, इंस्टेंस, लोकल, ग्लोबल, इस तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो किसी क्लास में हम स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, जब भी आप क्लास कॉल करते हैं और उस क्लास के अंदर में जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करें, यहाँ पर ये एक टैग होगा, तो जब भी आप कोई वेरिएबल क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो हमारा स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है, और इसके बाद ये इसका कंस्ट्रक्टर है। स्टैटिक वेरिएबल की ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि एक बार वो डिफाइन हो गया तो इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सारे में इस वेरिएबल की वैल्यू सेम होगी, लेकिन इंस्टेंस क्लास का जो वैल्यू होगा वो हमारा वैल्यू उस लोकल मेथड के अंदर जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग चेंजेबल होगा। यहाँ पर हमारा ए स्टैटिक क्लास है और सेल्फ भी हमारा इंस्टेंस क्लास के फॉर्म में आएगा। अब यदि ऑब्जेक्ट 1 का हम एक ऑब्जेक्ट बनाए स्टैटिक चेक, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, तो उसमें ऑब्जेक्ट 2, ये दो हमने ऑब्जेक्ट बनाए स्टैटिक चेक से, और इस पर जब हम प्रिंट किया ऑब्जेक्ट 1 का A और ऑब्जेक्ट 1 का B, तो A की वैल्यू 900 थी और B की वैल्यू 300 थी। ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल था और ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल था। अब यदि प्रिंट ऑब्जेक्ट 2 पर हम करें, ऑब्जेक्ट 2A ऑब्जेक्ट 2B, तो हमारा जो स्टैटिक वैल्यू है वो तो सेम रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 900 900, लेकिन जो इसका लोकल वैल्यू है, इंस्टेंस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो डिफर करेगा। यहाँ पर 300 है और ऑब्जेक्ट 2 में भी हमारा अभी करेंटली 300 है। तो अब यदि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर दें और ऑब्जेक्ट 1 पर इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को हमने चेंज किया, यदि फिर से हम ऑब्जेक्ट 1 का A और B की वैल्यू लें तो स्टैटिक की वैल्यू हमने चेंज किया 400, इसलिए 400, और ऑब्जेक्ट 1 के इंस्टेंस वेरिएबल को हमने चेंज किया तो ऑब्जेक्ट 1 का 66। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट 2 पर हम काम करें तो ऑब्जेक्ट 1 का स्टैटिक तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका जो लोकल इंस्टेंस वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्ट 2 का भी हमारा पुराना वैल्यू होगा, ये वैल्यू हमारा इस ऑब्जेक्ट 2 पर अफेक्टेड नहीं होगा। ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू होती है सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड है उसके अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है सिर्फ उस ऑब्जेक्ट तक ही लिमिट होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट पर उसका इफेक्ट नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर हमने बी के ऑब्जेक्ट 1 के बी की वैल्यू को चेंज किया, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 का बी हमारा वही है जो पहले वहाँ पे डिफाइन था। तो ये हमारा डिफरेंस होता है स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल। नाउ देयर इज वन MCQ, a dash variable is a variable whose value remains the same for all the objects of the class। कौन सा वेरिएबल है जिसका वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट क्लास में सेम होंगे, तो इसका आंसर होगा स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस मेथड कैसे बनाएंगे, क्लास मेथड
क्लास इंस्टेंस मेथड, यहाँ पे हमने क्लास लिया, देन डेफ इनिट सेल्फ एबीसी कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन कर दें और इसमें ए की वैल्यू को सेल्फ ए सेल्फ बी सेल्फ सी से असाइन कर दिया। डेफ सम नाम का हमने एक दूसरा मेथड बनाया, ये मेथड हमारा इंस्टेंस मेथड कहलाएगा। और इसमें और भी अदर मेथड बनाते हैं जैसे स्टैटिक मेथड और अदर मेथड्स भी होते हैं, तो उसके लिए अलग कीवर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन क्लास के अंदर डायरेक्टली यदि हम कोई फंक्शन बनाए तो वो हमारा कहलाएगा इंस्टेंस मेथड। और इस इंस्टेंस का यानी इंस्टेंस मेथड को ये इस इंस्टेंस मेथड का यदि हम कोई ऑब्जेक्ट बनाए जिसमें वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 4, 5, 6 दिया, तो ये 4, 5, 6 इस सेल्फ से यहाँ पे कॉल होगा और इस सेल्फ ए की वैल्यू हो जाएगी 4, ये सेल्फ बी की वैल्यू होगी 5 और इस सेल्फ सी की वैल्यू होगी 6 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो अब यदि इस इंस्टेंस मेथड में हमने ये वैल्यू पास किया और इस पर यदि हम कोई कमांड दे प्रिंट सम ऑब्जेक्ट 1 डॉट सम, तो इस ऑब्जेक्ट पर जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो भी वैल्यू हमने पास किया उनका सम इस जगह पर डिस्प्ले होगा। 6 + 4 10 + 5 15, सो इट्स आंसर इज सम इक्वल टू 15। Next MCQ, the instance method always work on the instance method always work on the instance method always works on the object. Next is class method. अभी हमने इंस्टेंस मेथड बनाना सीखा, अब क्लास मेथड कैसे बनाते हैं। स्टैटिक मेथड भी होते हैं, दोनों के अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। क्लास मेथड बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्लास मेथड, क्लास वेरिएबल और ये मेरा स्टैटिक हो गया और इस जगह पे हम यहाँ लिखेंगे @क्लास मेथड और इसके बाद जो भी मेथड डिफाइन होंगे वो मेथड हमारा क्लास मेथड कहलाएगा। इस कीवर्ड के बाद जो मेथड यूज़ होंगे वो सारे क्लास मेथड कहलाएंगे। अब यदि हम यहाँ पर प्रिंट करें क्लास मेथड ये मेरा क्लास का नाम है और इस मेथड को यदि हम कॉल करें cls क्लास मेथड, तो इस क्लास मेथड के जो वैल्यू होंगे cls डॉट क्लास वेरिएबल, क्लास वेरिएबल में हमने जो वैल्यू दिया है क्लास वेरिएबल, ये वैल्यू हमारे आउटपुट में डिस्प्ले होगा। A class method is a method that is bound to the dash and not to the object of the class. So its correct answer is A, class. A special symbol called a decorator followed by the keyword class method is used to define class method. class method define करने के लिए class method keyword के पहले कौन सा symbol यूज करते हैं, that symbol is called decorator and that decorator is A, @ A class method can be called by the dash or by the object of the class to which this method belongs. The correct answer of this is class. A class method can be called by the class or by the object of the class to which this method belongs. Then next कमांड स्टैटिक मेथड, इस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्लास मेथड लिखते हैं, देन @स्टैटिक मेथड और इस जगह पर कीवर्ड यूज कर रहे हैं स्टैटिक मेथड और इसके बाद जो भी मेथड हम डिफाइन करेंगे इस डेकोरेटर के बाद वो सब हमारा स्टैटिक मेथड। ये मेरा क्लास का नाम हो गया स्टैटिक मेथड, यहाँ हमने कीवर्ड यूज किया और एक मेथड बनाया स्टैटिक मेथड के नाम से। अब इस स्टैटिक मेथड क्लास पर यदि स्टैटिक मेथड को कॉल करें तो उसका मैसेज आएगा स्टैटिक मेथड का यदि हम कोई ऑब्जेक्ट बना लें और उस ऑब्जेक्ट पर इस स्टैटिक मेथड को कॉल करें तो अगेन हमारा रिजल्ट मिलेगा स्टैटिक मेथड। दोनों तरीके से हम कॉल कर सकते। विच मेथड इज नॉट ए कंसर्न टू द इंस्टेंस वेरिएबल एज वेल एज to the class variable. Its correct answer is
which method is not a concern to the instance variable as well as to the class variable. This is called static variable. A special symbol called a decorator dash followed by the keyword static method is used to static method. Obviously, its correct answer is A, at the rate. Operator overloading. Now we move to the second property of object-oriented programming, that is called operator overloading. ओवरलोडिंग के दो पार्ट होते हैं, ऑपरेटर एंड मेथड. जनरली मेथड ओवरलोडिंग हमारे पाइथन में नहीं होता, लेकिन अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में इसको यूज़ करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग भी यूज़ करते हैं. ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में हम लोग किसी ऑपरेटर पर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी को हम ऐड करते हैं. जैसे हमारा प्लस ऑपरेटर दो नंबर को ऐड करने के लिए होता है. दो नंबर को ऐड करने के लिए हम दो इंटीजर को भी लेते हैं, दो रियल नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से एक ही ऑपरेटर हमारा इंटीजर और रियल दोनों नंबर को ऐड कर रहा है. यदि इसी प्लस को हम चाहें कि दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर दे, दो स्ट्रिंग को ऐड कर दे, तो मेरा एक ही ऑपरेटर डिफरेंट फंक्शनलिटी शो करेगा. एक इंटीजर नंबर का एडिशन, रियल नंबर का एडिशन, स्ट्रिंग का एडिशन, ऑब्जेक्ट का एडिशन. ये एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हम जिस मेथड और जिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तो एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कैसे हम जनरली प्लस से तो हम नंबर और रियल नंबर को या नंबर को हम ऐड करते हैं, लेकिन दो ऑब्जेक्ट को यदि ऐड करना हो प्लस के थ्रू तो कैसे यूज़ करेंगे. हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं. std नाम का हमने एक क्लास बनाया, इसका एक कंस्ट्रक्टर सेल्फ एन हमारा पैरेंट आर्गुमेंट हो गया, और इस पर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए o1 std 5, ये 5 हमारा इस n में आ गया. o2 std 7 ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है. अब ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को यदि हम चाहें कि ऐड कर प्लस ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट 3 पर रख दे, तो ये फंक्शनलिटी इस प्लस की नहीं है. इस वजह से यहाँ पे टाइप एरर आएगा और अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर std एंड std. तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट को हम ऐड नहीं कर सकते प्लस के थ्रू. तो अब प्लस पर यदि दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने का हम फंक्शन ओवरलोड कर दें, यानी हम ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जिसमें कि प्लस इस दो ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर दे, तो ये कहलाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग. और ये कैसे करते हैं, अब इसके नीचे हम लोग करेंगे. When we add two objects s1 and s2, it will show an error because this functionality is not defined in the plus on the plus operator. Here it is not defined to the Python interpreter to add two objects. Hence we have to overload operator add. तो इस ऑपरेटर को हम कैसे ओवरलोड करेंगे. यहाँ एक हम क्लास बना रहे std, इसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ इनिट सेल्फ एन एन और फिर डेफ ऐड सेल्फ एम, और इस जगह पे हमने सेल्फ एन और इस एम पर डॉट एन को हमने ऐड कर दिया. अब यदि हम ऑब्जेक्ट 1 पर std क्लास का वैल्यू 5 के साथ हम इसे कॉल करें और ऑब्जेक्ट 2 पर std 7 के साथ कॉल करें, तो ये 5 और 7 इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है. o1 में हमारा 5 और o2 में हमारा 7 स्टोर्ड है. अब ये 5 और 7 को ऐड कर इसका रिजल्ट 12 देगा. इतनी ही नहीं, यदि अब इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर दे ऑब्जेक्ट 1 std साउथ, तो ऑब्जेक्ट चूँकि ऑब्जेक्ट को हमने ओवरलोड किया है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी दैट इज साउथ, एंड इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी अमेरिका, ये दोनों ऐड होकर साउथ अमेरिका हमारा रिजल्ट मिलेगा. इस तरह से हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज़ करते हैं अपने पाइथन में. The Python interpreter will take the operator plus add x dot underscore underscore add underscore underscore y. तो ये प्लस जैसे ही हम लिखते हैं,
हमारा लेफ्ट में कोई एक वैल्यू होता है वो, और इसके साथ जो दूसरी ऑपरेंट होती है उस दोनों को ऐड कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? दिस मेथड इज कॉल्ड रिवोकेशन, डेकोरेटर, इन्वोकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज पॉलीमॉर्फिज्म. The meaning of poly means multiple and morph means forms. Thus, polymorphism has multiple forms. In object orientation, due to polymorphic characteristics of object behave differently in different situations. तो डिफरेंट सिचुएशन में ये डिफरेंट तरीके से शो करेगा। देयर आर 4 ways टू इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन। पाइथन में 4 तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड डक टाइपिंग। इन पाइथन वी कांट स्पेसिफाई द टाइप एक्सप्लिसिट। अदर लैंग्वेज में हमारा किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पहले हमें डिफाइन करना होता है, बाद में हम उसको यूज करते हैं। बट इन पाइथन लाइक एक्सेल हम किसी डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करते हैं। इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो वेरिएबल खुद इसका डेटा टाइप डिफाइन कर देता है। सो ड्यूरिंग द रन टाइम whatever value we are storing in a variable, the type is considered automatically. This is called duck typing principle. इसी प्रिंसिपल को हम लोग डक टाइपिंग कहते हैं। और ये किस तरीके से हम यूज करेंगे? क्लास डॉग नाम का हमने एक क्लास तैयार किया, डेफ डिस्प्ले सेल्फ और प्रिंट डॉग हमने किया। एक दूसरा हमने क्लास बनाया पैरोट, सेल्फ डिस्प्ले और सेल्फ इसका अपना आर्गुमेंट, और इसमें हमने प्रिंट किया मैसेज पैरोट। तो यहाँ पे 2 क्लास है और दोनों क्लास में सेम मेथड को हमने कॉल किया डिस्प्ले। अब इस डिस्प्ले का आउटपुट डॉग होगा, बट इस डिस्प्ले का आउटपुट पैरोट होगा। अब यदि हम इसको कॉल करें तो कौन सा मैसेज प्रिंट होगा? एक ही फंक्शन 2 डिफरेंट फंक्शनलिटी या 2 डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहा है। तो यदि हम एक तीसरा क्लास बनाए एनिमल के नाम से, और इस पर हम लिखते हैं डेफ कोड self.ide, और इस IDE पर हम डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं। तो यदि हम इस डॉग का कोई ऑब्जेक्ट बना ले और इस ऑब्जेक्ट पर यदि हम एनिमल को कॉल करें, ऑब्जेक्ट एनिमल, IDE हमारा डॉग हो गया जो अभी ऊपर हमने यहाँ पे बनाया था। इस क्लास को हमने डॉग क्लास का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और ये OBG हमारा एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पर यदि हम इस मेथड को कॉल करें, इस कोड मेथड को कॉल करें, तो इस मेथड को जब कॉल करेंगे और इसका पैरामीटर हम IDE बना दें, तो IDE में चूंकि डॉग डिफाइन है इसलिए इसका रिजल्ट डॉग होगा। लेकिन अब यदि IDE में पैरोट लिख दे और ऑब्जेक्ट में एनिमल कर दे, तो हमारा इस मेथड को कॉल करने पर IDE के साथ अब हमें डिस्प्ले होगा पैरोट। तो यहाँ पर एक ही फंक्शन, सेम नेम का फंक्शन हमारे डिफरेंट रिजल्ट शो कर दे। इस कंसेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और इसका बेसिक पॉलीमॉर्फिज्म बनाने का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि किसी एप्लीकेशन में नंबर ऑफ फंक्शंस को रिड्यूस करना। एक ही चीज़ के यदि एक ही फंक्शन बार बार आ रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं, तो उस फंक्शन को हम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उसका जो आउटपुट है, फंक्शनलिटी है, वो आपका वही होगा जो रिक्वायर्ड है। देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अभी जस्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया था। कंसिडर दैट a equal to 2 and b equal to 5 are 2 variables in a programming language. When we are performing a plus b, it will perform the addition of 2 integer numbers. If x equal to good, y equal to morning, then x plus y will perform the addition of 2 strings. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्लस है वो दोनों तरह के वैल्यूज को
सम कर रहा है। यदि इंटीजर नंबर दिया तो इंटीजर को सम कर दिए, स्ट्रिंग वैल्यू दिए तो इसकी कॉन्कैटिनेशन हो गई। सो पाइथन इंटरप्रेटर विल टेक एज प्रिंट ए डॉट एड बी। पहले हम ए रखते हैं, उसके बाद जो भी आप दूसरा आर्गुमेंट दूसरा ऑपरेंड देते हैं वो ऑपरेंड यहाँ पे इसके साथ कॉन्कैटिनेट होता है। वेयर ऐड इज द मेथड ऑफ द इनिट क्लास। सो प्रिंट ए डॉट ऐड बी, यदि ऐसा करें तो हमारा 5 2 और 5, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 5, ये दोनों ऐड होकर 7 मिल जाएगी। देन मेथड ओवरलोडिंग, एक मेथड ओवरलोडिंग होता है, लेकिन ये मेथड ओवरलोडिंग हमारा जनरली यहाँ पे पाइथन में यूज नहीं होता। कंसीडर टू क्लासेस हैविंग मेथड्स विद द सेम नेम but with different number of parameters or different types of parameters, then the methods are called overloaded. In overloaded methods, the number of arguments is different or the types of arguments are different. एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया क्लास मेथड ओवरलोडिंग डेफ सम सेल्फ ए बी रिटर्न सेल्फ, यह हमारा पहला मेथड है। सेम नाम से हमने दूसरे मेथड सेम क्लास में बना दिए, लेकिन इसमें हमारा आर्गुमेंट 2 है और यहाँ पर आर्गुमेंट 3 है। तो ड्यू टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ये मेथड इससे डिफरेंट है, बट नेम आर सेम फॉर बोथ। तो अब यदि हम इस मेथड ओवरलोडिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और इसमें हम 2 नंबर को पास करें तो इसकी रिजल्ट क्या होगी। अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसकी रिजल्ट को सम कर देगा, बट इन पाइथन इट विल नॉट सम दिस वैल्यूज बिकॉज पाइथन डजंट support the method overload. So this error will be displayed on screen. Note, Python does not support method overloading. If multiple methods in a class have the same name, then Python will consider only the method described at the end of. इस चीज को हम मेथड ओवरराइडिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। इन मेथड in Python we can't create the same methods with the same name and the same number of parameters, but we can create methods of the same method in the classes derived in a hierarchy. Thus the child class redefined the parent class method, which is called method overriding. तो इस मेथड ओवरराइडिंग को कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे और कैसे बनाएंगे ये यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहला क्लास हमने बनाया कॉलेज, देन डेफ कॉलेज नेम, और इसका एक मैसेज हमने यूज़ किया IIT दिल्ली। इसके अंदर दूसरा मेथड हमने कोर्स बनाया जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिकल कोर्स को प्रिंट किया है। एक दूसरा क्लास हम बनाते हैं जिसमें हम इस कॉलेज क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, और यहाँ भी हम कोर्स नाम का एक मेथड बना रहे हैं और इस जगह पे कोर्स में हम मैकेनिकल दे रहे हैं। तो यहाँ चूँकि सेम नेम को हम यूज़ कर रहे हैं तो और इसको हम पेरेंट चाइल्ड क्लास में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये हमारा इनहेरिट ओवरराइड होगा। अब इसमें से यदि हम डिपार्टमेंट के हेल्प से या डिपार्टमेंट से ऑब्जेक्ट को बनाएं और इस पर डेप्थ कॉलेज नेम दें तो कॉलेज नेम में ये IIT को प्रिंट करेगा। अब इस डेप्थ ऑब्जेक्ट पर यदि हम कोर्स को कॉल करें तो ये कोर्स में चूँकि डिपार्टमेंट का ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस कोर्स को कॉल नहीं कर वो इस कोर्स को कॉल कर देगा मैकेनिकल। लेकिन यदि हम एक इसी कोड को यदि हम दूसरे तरह से रीडिफाइन कर दें, जैसे क्लास कॉलेज डेफ कॉलेज नेम प्रिंट IIT दिल्ली, फिर से कोर्स को हमने बनाया इलेक्ट्रिकल लिखा और क्लास डिपार्टमेंट बना रहे हैं, इस क्लास डिपार्टमेंट में कोर्स बना रहे हैं और इस कोर्स में फिर से हम सुपर को यदि यूज़ करें तो ये सुपर कीवर्ड हमारे पेरेंट क्लास के कोर्स को कॉल करेगा। अब इस तरीके से यदि इस कोर्स को डिपार्टमेंट के कोर्स को कॉल करें तो सबसे पहले वो आपका पेरेंट क्लास के कोर्स को कॉल करेगा, देन इस डिपार्टमेंट के कोर्स को कॉल करेगा। और इस डिपार्टमेंट कोर्स में हमने प्रिंट किया है प्रिंट मैकेनिकल। डिपार्टमेंट हमने डिपार्टमेंट से एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस डिपार्टमेंट पे जब कॉलेज नेम दिया तो IIT दिल्ली
और जब हम इसी ऑब्जेक्ट पर कोर्स को कॉल करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है सुपर क्लास का जो मैसेज है कोर्स का, यानी इलेक्ट्रिकल वो आएगा, और उसके बाद इस कोर्स का मैकेनिकल आएगा, जैसा कि हम लोग कंस्ट्रक्टर में भी देखा था। सबसे पहले वो सुपर क्लास पेरेंट क्लास का लाएगा और फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास के मेथड्स को कॉल करेंगे। एक अदर फीचर्स जो जनरली हमारे किसी भी लैंग्वेज में होते हैं जिसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अदर लैंग्वेज में भी एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? ये कीवर्ड से प्रोग्रामर्स ऑलवेज ट्राई टू राइट एन एरर फ्री प्रोग्राम, बट sometimes a program written by the programmers generates an error or does not execute due to the error generated in the program. Sometimes the program code is correct, but still it generates an error due to the malicious data being given as input to the program. This malicious data may be given by the user or from a file that causes an error generation during the execution. This type of error generally occurs when we use server-side programs such as web programming or example. यदि हम 5/0 करें तो यहाँ 0 डिवीजन एरर डिस्प्ले होगा, इसलिए इसमें नेम ऑफ एरर हो गया 0 डिवीजन एरर, और इसके बाद जो दिया हुआ है दैट इज द रीजन फॉर एरर। एरर का रीजन क्या है? यहाँ पर एरर का रीजन है कि हमने किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया, इसलिए ये एरर एराइज होगा। दूसरा हमारा जो एरर्स होते हैं वो होगा लिस्ट 1 2 3 4 लिस्ट 1 4। तो चूंकि इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 है और इंडेक्स वैल्यू 4 पर हमारा कुछ डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंडेक्स एरर मिलेंगे और इसका रीजन होगा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जो हमारा रेंज है 0 to 2 है और हम यहाँ पे मांग रहे हैं 4। सो नेम ऑफ एरर is index error and the region of for error is list index out of range. Third types of error generally a minus b। इस प्लेस पर नेम ऑफ एरर में नेम एरर है और रीजन है नेम ए इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि हमने ए की वैल्यू डिफाइन नहीं की और हम इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए नेम A is not defined. This is the reason and this is the name of error. Example 4 में हमने लिखा है int 42.5। क्योंकि int हमारा किसी न्यूमेरिक वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, बट यहाँ पे हमने यूज किया है नंबर की जगह पे सिंगल कोट के अंदर स्ट्रिंग बना करके। तो स्ट्रिंग का ये इंटीजर वैल्यू ये रियल वैल्यू को स्ट्रिंग रियल वैल्यू को ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एरर हो गया वैल्यू एरर और टाइप रीजन हो गया इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10 42.5। सो नेम ऑफ एरर दिस एंड रीजन इज दिस वन। पांचवें तरह की जो एरर्स हम लोग कहते हैं 4 into 6, और यहाँ पे 4 और 6 हमारा स्ट्रिंग है। सो again we will get the error type error and the region is can't multiply sequence of none int of type str। string type के नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। so name of error is type error and the region is can't multiply sequence by non int of type str। in the above examples syntax is correct but it goes to an invalid state। These are runtime errors. In such a situation, the Python interpreter generates an exception for runtime errors. This exception generates an object which contains all information related to the error। In Python, every exception is a class। Python में हर एक exception किसी न किसी class से belong करते हैं। And these classes are the derived class of the base exception class। Thus, base exception class is the topmost class in the hierarchy of exception। यहाँ पर base exception सबसे टॉप क्लास में आता है, यानी कि ये पेरेंट होता है और इसके बहुत सारे डिफरेंट चाइल्ड होते हैं जो एक्सेप्शंस के अलग अलग पार्ट हैं। बेस एक्सेप्शंस का पहला है एक्सेप्शन, इसके अंदर में
अरिथमेटिक सब क्लास होते हैं। अरिथमेटिक के अंदर भी हमारे डिफरेंट क्लासेज होते हैं और इस एक्सेप्शन में अदर जो हमारा एक्सेप्शन है, असर्शन एरर, एट्रीब्यूट एरर, बफर एरर, यूएफ एरर, इम्प्रॉपर के अंदर मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, लुकअप एरर, मेमोरी एरर, नेम एरर के भी सब एरर्स हैं, ओएस एरर के भी बहुत सारे एरर्स हैं, इसके भी कनेक्शन एरर, और इस कनेक्शन एरर में भी बहुत से एरर्स आते हैं। इस तरह से यदि देखें तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शंस के कई सब एक्सेप्शंस हो गए और उस सब एक्सेप्शंस के भी बहुत सारे एक्सेप्शंस सब एक्सेप्शंस होते हैं। तो इस तरह के लिस्ट यहाँ पे ये हमने बना करके रखा है, जिसको हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं। देन रेफरेंस एरर, रेफरेंस रन टाइम एरर्स, नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर, रिकर्सन एरर एटसेट्रा। इस तरह की ये पूरी हायरार्की है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इस एक्सेप्शन को हम हैंडल कैसे करें? इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास तरीका होता है। एग्जाम्पल 1, जैसे हम यहाँ पर यदि एक्सेप्शन हम यूज ना करें तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रिंट अरिथमेटिक डिवीजन, प्रिंट 5/0, प्रिंट ऑपरेशन रन सक्सेस। हेयर सेकेंड लाइन जनरेट्स द फॉलोइंग एरर। जब हम इस 3 लाइन्स को एक्सिक्यूट करेंगे तो पहले में किसी तरह का कोई एरर नहीं, इसलिए आउटपुट में अरिथमेटिक डिवीजन। जैसे ही हमारे पास ये एरर मिला 5/0 डिवीजन एरर, वहाँ पर ये एक मैसेज दिया और इसके बाद के सारे ऑपरेशंस को उसने इग्नोर कर दिया। तो यदि हम एक्सेप्शन यूज़ करें तो यहाँ पर वो एक्सेप्शन मैसेज शो करेगा और इसको बाईपास कर इसके बाद के जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको परफॉर्म कर देगा। यदि हम ऐसा चाहते हैं कि कहीं पर इस तरह के एरर्स आए तो इसके मैसेज को शो करते हुए हम आगे का काम कंटिन्यू करें, तो हमें अपना एक्सेप्शन लिखना होगा और इसी एक्सेप्शंस को लिखने के लिए हम डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम विथ एन एक्सेप्शन हैंडलिंग एज बिलो। अब इसी को हम कैसे हैंडल करेंगे ताकि हमारा बाद का ऑपरेशन एरर के बाद, एरर स्टेटमेंट के बाद का स्टेटमेंट हमारा एक्सिक्यूट हो, इसके लिए किस तरह से इस एरर को हैंडल करें, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। सबसे पहले हमने प्रिंट दिया और इस जगह पे चूंकि हमारा एरर आ सकता है या यहाँ पर हमारा एरर है, जिस स्टेटमेंट में हमारा एरर है उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर में रखें और ये किस टाइप का एरर है वो नेम ऑफ एरर हम यहाँ डिफाइन करते हैं और इसके बाद इससे रिलेटेड कोई मैसेज हो वो करते हैं। देन अदर जो हमारे ऑपरेशन है जैसे प्रिंट ऑपरेशंस रन सक्सेसफुली, ये हमारा उस एरर स्टेटमेंट के बाद का स्टेटमेंट है। अब यदि इसको हम किसी फाइल test.py में स्टोर कर इसको एक्सिक्यूट कर दें तो क्या डिस्प्ले होगा? अरिथमेटिक डिवीजन, ऑपरेशन रन सक्सेसफुली। तो सबसे पहले ये इस लाइन को प्रिंट किया, यहाँ पर चूंकि एरर था उस एरर को इसने बाईपास किया और इसके बाद का एक्सिक्यूशन किया, ऑपरेशन रन सक्सेसफुली। और ये ऑपरेशन रन सक्सेसफुली विदाउट एक्सेप्शन डिस्प्ले नहीं हुआ था, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। यदि उसी कोड को हम इस तरीके से लिखें इन जनरल तो ये बाईपास हो जाता है, ये हमारा एक्सिक्यूट नहीं होता इस एरर की वजह से। जब हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर दिया तो इसको वो बाईपास कर इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट है, यदि हम चाहें कि इस का एरर टाइप क्या है, नेम ऑफ एरर क्या है वो जानना चाहते हैं, तो उसी एक्सेप्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्रिंट अरिथमेटिक डिवीजन, जिस जगह पे एरर है ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्ट, और ये हो गया नेम ऑफ एरर और उसका रीजन क्या है, उसका टाइप क्या है, तो उसको हम इस MSG नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे एज MSG। और बाद में हम प्रिंट एक्सेप्शन रेस्ट MSG इस
वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। देन नेक्स्ट ऑपरेशन होगा, ये मेरा इस स्टेटमेंट के पहले का स्टेटमेंट हमारा प्रिंट अरिथमेटिक डिवीजन है और ये मेरा इस एरर के बाद का स्टेटमेंट है। अब इसको एक्सिक्यूट करें तो सबसे पहले अरिथमेटिक डिवीजन और यहाँ पर जो एरर है उसका रीजन क्या है, तो एक्सेप्शन रेज ड्यू टू डिवीजन बाय 0, और इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कर दिया। तो इस तरह से हम अपने रन टाइम एरर्स को बाईपास कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। देयर मे बी मोर देन वन एक्सेप्ट ब्लॉक एज बिलो। ऊपर हमने सिर्फ सिंगल ब्लॉक को यूज़ किया है, हम चाहें तो एक से ज़्यादा ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट अरिथमेटिक डिवीजन ट्राई, यहाँ पे हमने 2 नंबर इनपुट करवाए यूज़र से और इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर n1 और n2 पे स्टोर कर दिया। प्रिंट n1 बाई n2। अब n1 और n2 की जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट होगा। यदि n2 की वैल्यू 0 हो गई तो ये एक्सेप्शन काम करेगा, और यदि कोई वैल्यू एरर है तो ये एक्सेप्शन काम करेगी। यहाँ पे हम 2 एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट अरिथमेटिक डिवीजन ट्राई n1 input enter first number second number print n1 by n2 first block except block 0 division error as message 1, और इसका जो मैसेज रीजन होगा वो यहाँ पे शो करेंगे, और यदि ये ब्लॉक एक्सिक्यूट हुआ तो इसका जो मैसेज रीजन है वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट इस स्टेटमेंट के बाद ये मेरा एरर वाले स्टेटमेंट थी, और उसके बाद का जो स्टेटमेंट था वो हमारा प्रिंट ऑपरेशन टेस्ट py, और हमने हमारा पहला जो स्टेटमेंट है अरिथमेटिक डिवीजन वो प्रिंट हुआ। देन फर्स्ट नंबर हमने 10 इनपुट किया, सेकेंड नंबर 2 दिया, 10 को 2 से डिवाइड किया, किसी तरह की कोई एरर नहीं, तो दोनों एक्सेप्ट ब्लॉक हमारा बाईपास होगा और लास्ट जो स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट करेगी। यदि उसी को हम फिर से रन करें और इस बार हमें यदि वैल्यू 10 दे और सेकेंड नंबर 0 दे तो यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा जो डिवीजन बाय 0 का है। तो सबसे पहले वो फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट दिया, इस जगह पे एरर है तो डिवीजन एरर जो भी एरर है उस एरर का रीजन बताया और नेक्स्ट स्टेटमेंट को। अब इसी को यदि हम फिर से एक्सिक्यूट करें और इस बार अरिथमेटिक डिवीजन और यहाँ पर हम 10 दे दे फर्स्ट नंबर, लेकिन सेकेंड नंबर में हम ए दे, तो इस जगह पे डिवीजन बाय एरर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमारा रॉन्ग है, नंबर की जगह कैरेक्टर या स्ट्रिंग वैल्यू दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग दूसरा जो हमारा एरर है प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू ओनली, इस जगह पे हमको मिलेगा इनवैलिड लिटरल और फॉर इंट विथ बेस 10a। तो इस 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटीजर होनी चाहिए लेकिन इंटीजर नहीं है, इसको मैसेज को प्रिंट कर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को शो कर दिया। देयर में बी डैश एक्सेप्ट ब्लॉक ऑफ 1 ट्राई ब्लॉक। एक ट्राई ब्लॉक के कितने एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 मोर देन 1। Corresponding to each error there will be an except block. If the corresponding except block is not there then an except block written at the end। कभी कभी डिफरेंट एरर के लिए हम डिफरेंट एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं, मगर इस पर भी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम हमारा जो एरर है उसके अकॉर्डिंग किसी एक्सेप्ट ब्लॉक को हमने नहीं लिखा, तो जो सबसे लास्ट में हम एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं जो मैसेज प्रिंट करते हैं दैट इज कॉल्ड रिटर्न एट द एंड ऑफ ऑल एक्सेप्ट ब्लॉक्स इज यूज्ड फॉर द एरर। तो इसमें जो सबसे लास्ट एक्सेप्ट ब्लॉक होगा उसको हम यूज़ करेंगे। और ये कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पे हम उसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं। प्रिंट अरिथमेटिक डिवीजन, फर्स्ट नंबर लिया, सेकेंड नंबर लिया, प्रिंट किया एक्सेप्ट 0 डिवीजन बाय एरर। यदि डिवीजन बाय एरर हुआ तो ये मैसेज होगा, और यदि वैसा नहीं कुछ और वैल्यू आपने डाल दिया तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक काम करेगा। अब इसको देखते हैं रन कराकर क्या मिलता है। टेस्ट py डिवीजन अरिथमेटिक डिवीजन, ये मेरा फर्स्ट लाइन का आउटपुट है। फर्स्ट एंटर फर्स्ट नंबर हमने b दे दिया, तो चूंकि ये हमारा नंबर होना चाहिए और यहाँ पे हम b दे रहे हैं, सो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट प्लीज़ एंटर वैलिड इनपुट। तो अभी जस्ट ऊपर आपने देखा
कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट है ये मैसेज काम कर रहा है, ये काम नहीं किया। तो इस तरह का काम हम अपने एक्सेप्शन में कर सकते हैं और लास्ट में फिर वो लास्ट स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कर दिया। समटाइम्स एक्सेप्शंस may or may not be raised and sometimes exceptions may or may not be handled. Irrespective of both of these, we will want to execute some codes. Such codes are written in finally block. अभी तक हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए सिर्फ दो तरह के कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, ट्राई और एक्सेप्ट। अब हम एक तीसरा कीवर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फाइनली। और ये इस कीवर्ड के इस कीवर्ड को यूज़ इसलिए करते हैं कि कभी कभी हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन रेज होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कि कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ या हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई मैसेज प्रिंट हो उसकी जगह पे, तो हम ये फाइनली कीवर्ड को यूज़ करते हैं। प्रिंट अरिथमेटिक डिवीजन वही कंसेप्ट लिया है। ट्राई ब्लॉक में हमने दोनों नंबर लिया, एक्सेप्ट डिवीजन से डिवीजन का एरर होगा तो मैसेज 1, वैल्यू का एरर होगा मैसेज 2, और फाइनली प्लीज एंटर वैलिड इनपुट। ये मेरा फाइनली है। यदि ये दोनों एरर ऑकर नहीं हुए तो ये मैसेज आएगा। और लास्ट में ये हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है। अब यदि इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं तो टेस्ट बाय अरिथमेटिक डिवीजन एंटर फर्स्ट नंबर 10। यहाँ किसी तरह का कोई एरर नहीं है, इसलिए रिजल्ट मिला। प्लीज़ एंटर वैलिड इनपुट, तो प्लीज़ एंटर वैलिड इनपुट ये फाइनली हमारा लास्ट में एक्सिक्यूट किया और उसके बाद हमारा प्रिंट आ गया। अब यदि हम यहाँ पर चाहें तो नेस्टेड ट्राई ब्लॉक को भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है प्रिंट अरिथमेटिक डिवीजन ट्राई, ये मेरा मेन ट्राई ब्लॉक है जिसमें 2 नंबर लिए, ट्राई प्रिंट n1 n2, और इसका हमने एक्सेप्ट करके बताया। अब इस स्टेटमेंट के पहले, अभी तक हम इसके पहले ये सिर्फ सिंगल ट्राई लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर एक और ट्राई ब्लॉक हम यूज़ किए और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर में हम ये एक्सेप्ट यूज़ करें। तो यहाँ पर 0 डिवीजन लिखा हुआ है, फर्स्ट मैसेज, सेकेंड मैसेज और फाइनली स्टेटमेंट है, और ये एक्सेप्ट हमारा मेन ब्लॉक का एक्सेप्ट इस ट्राई का, और उसका फाइनली हमारा है फाइनली ब्लॉक ऑफ आउटर ट्राई ब्लॉक। ये हमारा इनर ट्राई ब्लॉक हो गया। दिस इज आवर इनर ट्राई ब्लॉक एंड दिस इज आवर आउटर ट्राई ब्लॉक। तो इसको यदि एक्सिक्यूट करें तो 10/2 ये हमारा मैसेज आ गया। फाइनली ब्लॉक ऑफ इनर ट्राई ब्लॉक आया और लास्ट में ये फाइनली ब्लॉक ऑफ आउटर ट्राई ब्लॉक आ गया। ऑपरेशन रन सक्सेसफुली, और इस पर डिफरेंट वैल्यूज दे करके भी आप इसके आउटपुट को चेक कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेस्टेड ट्राई ब्लॉक इन पाइथन इज अलाउड, नॉट अलाउड, इम्पॉसिबल, नन। पाइथन में ट्राई ब्लॉक, नेस्टेड ट्राई ब्लॉक अलाउड है, नहीं है, पॉसिबल है, नहीं है, ऑब्वियसली इट इज अलाउड, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, हम अपना एक्सेप्शंस भी लिख सकते हैं। A programmer can create his exception called the user-defined exception or custom exception. A user-defined exception is also a class derived from an exception class. Thus, the class is the user-defined class, which is a subclass of the exception class. इसका सिंटेक्स होगा क्लास माई एक्सेप्शन, एक्सेप्शन पास, क्लास माई एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, और ये मेरा इनिट एक कंस्ट्रक्टर की तरह है। एग्जाम्पल, प्रोग्राम टू रेज एन एक्सेप्शन, हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन बना रहे हैं। ये क्लास न्यू एक्सेप्शन, ये कीवर्ड हमें यूज करना होगा, और इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया कंस्ट्रक्टर डेफ इनिट सेल्फ आर्गुमेंट, सेल्फ मैसेज पर हमने आर्गुमेंट की वैल्यू को डाल दिया। ओल्ड एक्सेप्शन एक दूसरा क्लास बनाया और इसमें भी फिर लिखा डिफ इनिट सेल्फ ARG, और इस ARG को इस सेल्फ ARG पर। अब यदि हम यहाँ पे इसको एक वैल्यू दें, जैसा कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया टोटल मार्क्स, और यहाँ यूजर से इनपुट करवा दिया हमने कि टोटल मार्क्स जितना है वो दीजिए। यदि टोटल मार्क्स 749 से एबव हुआ, यानी 750 और एबव हुआ, तो वो मैसेज देगा डिस्टिंक्शन। एल्स
इसके एल्स में हमने फिर एक इफ स्टेटमेंट लगाया, एलिफ यदि टोटल मार्क्स 399 दैट इज 400 से ऊपर है तो उस केस में इसका रिजल्ट होगा पास, और ये भी यदि फॉल्स हो गया तो लास्टली वो प्रिंट कर देगा फेल्स। तो टोटल मार्क्स पर वो कौन सा एक्सेप्शन, यदि इससे ऊपर हुआ तो न्यू एक्सेप्शन को जनरेट करना है जो ऊपर हमने बनाया है, न्यू एक्सेप्शन इसका मैसेज आएगा, और यदि ये 400 से ऊपर हो गया तो सेकेंड ओल्ड एक्सेप्शन का मैसेज आएगा। test.py उस प्रोग्राम को हमने test.py में स्टोर किया। अब इसको यदि हम एक्सिक्यूट कराएं तो एंटर टोटल मार्क्स 755। हम सारे प्रोग्राम्स के लिए एक ही फाइल नेम यूज़ कर रहे हैं test.py, इसलिए उससे घबराइएगा नहीं। जो जस्ट इसके पहले का कोड है वो इस फाइल नेम में सेव्ड है और इसी फाइल को हम यहाँ एक्सिक्यूट कर रहे हैं। अब यदि टोटल मार्क्स हमने 755 एंटर किया तो ये हमारा एक्सेप्शन देगा डिस्टिंक्शन। इसी में यदि हम टेस्ट पाई को एक्सिक्यूट करें और 450 दें तो ये 755 हमारा फर्स्ट कंडीशन में फेल हो रहा है और सेकंड कंडीशन में ये 450 सही है, इसलिए इसका आंसर हो गया पास। अगेन इसको यदि हम एक्सिक्यूट करें और इस बार 300 दें तो फर्स्ट और सेकंड बोथ कंडीशन हमारे फेल्स हो गए, तो लास्ट जो हमारा कंडीशन है फेल्स वो रिजल्ट हमारा शो होगा। गिव द नेम ऑफ द एरर जनरेटेड बाय द फॉलोइंग, इस तरह से यदि इनपुट करें तो इसमें कौन सा एरर्स आएगा। ऑब्वियसली 0 से डिवीजन है, 0 डिवीजन एरर। गिव द नेम ऑफ द एरर जनरेटेड बाय द फॉलोइंग पाइथन कोड, इस जगह पे हमारा एरर है जिसमें ये बिग ब्रैकेट नहीं स्मॉल ब्रैकेट होगा, सो इट्स करेक्ट आंसर इज सिंटैक्स एरर। गिव द नेम ऑफ द एरर जनरेटेड बाय द फॉलोइंग पाइथन कोड y+8, यहाँ पर y की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस जगह पे जो एरर आएगा वो मेरा नेम एरर होगा। जनरली इस तरह के एरर को आइडेंटिफाई करना एक प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के समय प्रॉपर नेम दे सके। गिव द नेम ऑफ द एरर जनरेटेड बाय द फॉलोइंग पाइथन कोड 3+4, यहाँ बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, सो इट्स एरर इज 3+4, बिग ब्रैकेट की वजह से वैल्यू एरर। सिंटेक्स देखिए और उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सेप्शंस को याद रखिए ताकि प्रोग्रामिंग के समय हम प्रॉपर और सही तरीके से हम exception handling. Give the name of the error generated by the following Python code LST1:2:3। तो इस जगह पे हमारा जो एरर है वो सिंटेक्स एरर है क्योंकि इस जगह पे सेमीकोलन नहीं कॉमा होता है। गिव द नेम ऑफ द एरर जनरेटेड बाय द फॉलोइंग पाइथन कोड LST123। इस जगह पे हमारा जो एरर जनरेट होगा 0, 1, 2 और ये रेंज से बाहर है, सो it will give us 6 index error. Give the name of the error generated by the following Python code. इस जगह पे हमारा जो एरर होगा वो चूंकि इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसलिए इस जगह पे जो एरर होगा वो टाइप का एरर है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। गिव द नेम ऑफ द एरर जनरेटेड बाय द फॉलोइंग पाइथन कोड 5.0 $22 lakhs। यहाँ पर इतने बड़े वैल्यूज को ये पावर नहीं निकाल सकता, इसलिए इस जगह पे जो एरर आएगी इस तरह के एरर को हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो एरर। गिव द नेम ऑफ द एरर जनरेटेड बाय द फॉलोइंग पाइथन कोड फॉर k इन रेंज टू पावर 100। इस जगह पे जो एरर जनरेट होगा वो इंडेंटेशन का होगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इंडेंटेशन हमने नहीं किया है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। सेलेक्ट द कीवर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनमें से कौन सा कीवर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज नहीं करते। 390 में ट्राई यूज करते हैं, एक्सेप्ट भी यूज करते हैं, फाइनली भी यूज करते हैं, सो इट्स करेक्ट आंसर। यहाँ पे कह रहा है कौन सा नहीं यूज करते, नॉट, so its correct answer is 8. What type of inheritance is illustrated in the following Python code?
इसमें कौन सा इनहेरिटेंस है। क्लास 1 को हमने क्लास 2 में लिखा, क्लास 2 को हमने क्लास 3 में लिखा, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा। बी, व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग पाइथन कोड। क्लास 1, क्लास 2, और इसमें हमने क्लास 1 को क्लास 2 में यूज किया है। सिर्फ एक ही लेवल है, इसलिए इसकी जो होगी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में क्लास 1 क्लास 2 दोनों को हमने यूज किया है, तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का करेक्ट आंसर होगा ए। सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट जनरेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड से कौन सा रिजल्ट मिलेगा। क्लास कोड 1 डेफिनेट सेल्फ एसटी वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। ये मेरा कंस्ट्रक्टेड है। यहाँ पे आउटपुट नाम का एक हमने मेथड क्रिएट किया। कोड 1 का ऑब्जेक्ट बना रहे, ऑब्जेक्ट 1 पर यदि हम आउटपुट प्रिंट करें तो क्या प्रिंट में आउटपुट सेल्फ डॉट एस टी, आउटपुट का सेल्फ जो भी कंस्ट्रक्टर है उसकी वैल्यू पहले आएगी और तब ये वैल्यू आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर एरर नॉट आउटपुट वेलकम टू पाइथन वर्ड। जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास। ऊपर जो हायरार्की हमने दिया था उस हायरार्की में आप चेक कीजिएगा, जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन डिराइव्ड होता है अरिथमेटिक एरर से। उस हायरार्की के बेसिस पर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उसके सीक्वेंस को थोड़ा याद रखना होगा। डैश रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड विथ इट्स आइडेंटिटी एंड बिहेवियर। Its correct answer is an object represents an entity in the real world with its identity and behavior. This is the hint. Dash is used to create an object. Object को create करने के लिए हम किसको यूज करते हैं। Its correct answer is constructor. What will be the output of the following Python code? Class test, def init, ये हमारा कंस्ट्रक्टेड है, def display self, और टेस्ट के क्लास के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट पे डिस्प्ले को यदि कॉल करें तो इसमें क्या प्रिंट होगा। इस कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया है तो इसमें जो आउटपुट होगी वो आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड। व्हाट इज सेट एट्रीब्यूट, ये बहुत काम का चीज़ है। बाद में इसका नेक्स्ट वीडियो में सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट का क्या यूज है वो दिखाएंगे। व्हाट इज सेट एट्रीब्यूट यूज्ड फॉर। सेट एट्रीब्यूट को किस लिए यूज करते हैं, तो टू सेट एन एट्रीब्यूट, टू डिलीट एन एट्रीब्यूट, चेक। इट्स करेक्ट आंसर इज ए। सेट एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट का नाम, नेम और उसका वैल्यू इज यूज्ड टू सेट एन एट्रीब्यूट। इफ द एट्रीब्यूट डजंट एग्जिस्ट देन इट वुड बी क्रिएटेड। व्हाट इज गेट एट्रीब्यूट used for? Correct answer is to set an attribute, to delete, to access the attribute of the object. और इस सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट का इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है।